गला तो अच्छा काफी सना, खराब। चल, ओके सना, आपके पास है कोई सिनेरियो फाइब्रॉइड से रिलेटेड? मैडम मेरे पास नहीं है, आप दे दें, HMB विद फाइब्रॉइड दे दीजिएगा। HMB का कर लें, ओके। सो ये इसलिए अच्छा हो गया सना ने बोला कि HMB विद फाइब्रॉइड, क्योंकि फाइब्रॉइड्स कैन प्रेजेंट विद मेनी सिम्टम्स। जैसे हमने एनीमिया की 2 क्लासेस की थी, मुझे लगता है कि फाइब्रॉइड्स पे भी 2 क्लासेस करनी पड़ेंगी। हाउएवर, चलो सना का सिनेरियो हम करते हैं। पेशेंट इज 36 years old and she is para 3 with last हम्म। child born 5 years back, and हम्म। she presents with heavy menstrual bleeding for last 1 year, and on ultrasound she has a fibroid 5 into 6 centimeter on anterior wall, which is indenting the cavity, and another fibroid 2 into 3 centimeters on posterior wall. How will you manage? Okay. After mutual introduction, I will confirm the given detail in this scenario. Then I will take the focus history regarding her presenting complaint. Before asking that, I will rule out her pregnancy and the use of any emergency contraception she used. Then I will ask about her the age of menarche and the previously cycle was regular or not, how many pads she soaked, and how many days she bleed. Any complaint of the dysmenorrhea, dyspareunia, any intermenstrual bleeding, and the postcoital bleeding. Then I proceed for the current cycle, its duration. As my patient said, have irregular with heavy menstrual bleeding since 1 year. That was continue or episodic. How many pads she soaked per day, and what was the material used? Is it a homemade or sanitary pad? And is it associated with the heavy clots? And what is the size of clots? Then I will ask about her the any complaint of the dysmenorrhea, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, and dysmenorrhea worsened with the passing days or not. Then any complaint of fatigue, lethargy, any palpitation, how's her quality of life is affected. And for that reason, is she take any treatment like OCPs, any progesterone, any mm, and any investigation for that. Then I will ask about her that is she taking any oral or IV iron for that symptoms of the fatigue or and lethargy. And then any treatment and investigation up till now. Then I will go according to the palm point. Then any history of the lower abdominal pain, any history of the mass, any history of weight loss, loss of appetite, any lump in the body. Then I will ask about her any history of the heat and cold intolerance, any history of the acne, hirsutism, and in past obstetric history, and as she is para 3, what was the modes of delivery, and is she spontaneous conception or with the ovulation induction, and is the babies are alive. And then I will ask about her the past surgical history of the concern, any drug, is she taking any anticoagulant or any coagulopathy in her and family history. Then rest of the template like the drug allergy, drug addiction, and the socioeconomic status. Madam, I am done with my history. ठीक है, आप Hello. एग्जामिनेशन भी बता दो। Okay. एग्जामिनेशन भी Okay. बता दो। जी madam. I will calculate the BMI, monitor vital, blood pressure, respiratory rate, temperature, pulse, check the signs and symptoms of the anemia, pilarness, polynechia, then thyroid examination and cardiovascular examination if my patient says the shortness of breath in detail. Then per abdominal examination to check the superficial and the deep palpation to rule out any visceromegaly. As my patient have two mass, so 5 into 6 and 2 into 3 posterior walls. So I will check their size, site, surface, margin, mobility, tenderness, temperature, consistency, and the lower limit is reachable or not. Then I will do the per speculum examination to check the cervical health. Any discharge is present. Then I will take the high vaginal swab. Any polyp to roll, any polyp, seen the polyp. Then by manual examination, I will check the sized position of the uterus, any tenderness, any pathology in the adenexa. Madam, ओके, ठीक I'm है। done with my सो examination. ठीक है, आपका ठीक था, पर वही बात है कि ये टॉपिक ऐसा है, जैसे अनीमिया है या फाइब्रॉइड है या इनफर्टिलिटी है, ये वो टॉपिक है जो आने ही आने एग्जाम में। और ये हर कोई बहुत प्रिपेयर करके जाएगा, और अब अगर हर कोई प्रिपेयर करके जाएगा तो यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड।
ठीक है, दो तीन चीजें, वेन एवर यू आर टॉकिंग और टेलिंग द हिस्ट्री, आपका एक्सेंट और आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। मैं हर क्लास में कहती हूँ, देर आर फ्यू मेडिकल टर्म्स जिसमें आप अगर, जैसे कुछ लोग मिनारकी को मिनार्क बोलते हैं, यू शुड बी क्लियर इट इज मिनारकी। कुछ लोग पेलर को, आई डोंट नो व्हाई पेलार बोलते हैं, दिस इज पेलर। पेलारनेस इज नथिंग। तो जब आप ये बातें बोल रहे होते हो, आप कोशिश करो कि इस चीज को जितना ठीक रख सको, राइट। बिकॉज अब आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो, ऑल्दो इन चीजों का शायद इतनी वेटेज नहीं है, बट जैसे कल को अगर आप किसी और को पढ़ा रहे हो, या आपने अपनी इंशाल्लाह आगे अपने जैसे वार्ड में राउंड भी कर रहे हो, योर जूनियर्स विल बी लुकिंग एट यू, तो आपको अपना एक्सेंट, अपना प्रोनाउंसिएशन, हर चीज को बिल्कुल ठीक, स्पेशली मेडिकल टर्म्स का, कोइलोनिकिया, पैलर, मिनार्की, राइट, यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। जहां जहां, बिकॉज ये मेडिकल टर्म्स हैं, तो शायद हमें अपने इर्द गिर्द में और कई सीनियर्स भी गलत बोलते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि हम ठीक भी बोल रहे हैं नहीं। तो आप गूगल पे वॉइस वाला जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर ठीक कर लो। अभी से ही ठीक होना चाहिए, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज, योर हिस्ट्री। एक मैं आपको बताती हूँ, देखो हर टॉपिक का आपने ना एक पैटर्न बना लेना है हिस्ट्री का। अब पेशेंट इज देयर विद हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ऑन अल्ट्रासाउंड शी हैज गॉट अ फाइब्रॉइड। सो अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए विद द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री से। इट वाज गुड, यू स्टार्टेड विद रूलिंग आउट प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रासेप्शन, विच इज वेरी गुड। चलो लेकिन ये तो आप बता रहे हो एग्जामिनर को। आपने इवन एग्जामिनर को बताते हुए भी, स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी, और ऑफ कोर्स कैंडिडेट से तो आप बोलोगे नॉन मेडिकल टर्म्स, तो आपने नॉन मेडिकल टर्म्स में ही बात करनी है। आपने इसी तरह बात करनी है कि जैसे कि कि कोई पीरियड्स मिस तो नहीं हुए, या प्रेगनेंसी टेस्ट किया या नहीं किया, और या अगर हेवी ब्लीडिंग है तो इरेगुलर कंटिन्यूस हेवी ब्लीडिंग तो नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने उसमें उसी तरह पूछना है कि कोई वक्फे के लिए, आपने ये सारी चीजें पूछ के, ठीक है, इट वाज गुड दैट यू फर्स्ट रूल्ड आउट दीज थिंग्स इन हिस्ट्री आल्सो। और फिर आप, लेकिन फिर आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए विद अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले रेगुलर के 7/30 या 28 जितने भी डेज का उसका साइकिल है, हाउ मेनी पैड शी वाज चेंजिंग एवरीथिंग। और फिर कोई कोई उसके अंदर इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकोइटल ब्लीडिंग तो नहीं थी, और वो भी नॉन मेडिकल टर्म्स में। और उसके बाद आपने कोई डिस्मेनोरिया, डिस्पारोनिया, वो सारा पूछ लेना है। उसके बाद आप इसकी अब वाली साइकिल को कंपेयर करोगे। वो कैसे करोगे कि इसको बहुत डिटेल में, विच यू डिड वेरी वेल एक्चुअली। आपने अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, क्लॉट्स, पैच, एवरीथिंग आपने बड़ा अच्छा, बिकॉज जहां पेशेंट एचएमपी के साथ आए, वहां पे आप जब तक अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को क्वांटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप ट्रीट कैसे कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप इंशाल्लाह आगे भी जब अपना क्लिनिक भी करोगे या जब ओपीडी भी करोगे, यू विल रियलाइज कि बहुत सारे पेशेंट्स ब्लीडिंग हैवी कह रहे होते हैं, बट दे डोंट एक्चुअली हैव एचएमबी, नंबर वन। जी। नंबर टू इज दैट मेनी पेशेंट्स कीप ऑन सेइंग कि उनको एचएमबी है, बट आप उसका एचबी देखो तो नॉर्मल। सो यू नीड टू रूल आउट कि वाकई एचएमबी है कि नहीं। एग्जाम में ऐसा पेशेंट बिठाया होता है जिसको एक्चुअली एचएमबी नहीं होती, लेकिन वो प्रेजेंट करती है विद एचएमबी, और उसका एचबी नॉर्मल होता है। सो आपने वहां पे अपनी क्वांटिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, ये आपने साइज ऑफ क्वांटिफाई करना है जैसे सना ने भी किया था। उसके बाद अच्छा, देन देर आर मेनी पेशेंट्स इन एग्जाम ऑल्सो एंड in your real life also who don't actually know what is HMB, what is heavy menstrual bleeding। फनी बात यह है, वो कहते हैं उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि उनको शुरू से ही शायद ऐसी थी, उन्हें लगता है कि वो नॉर्मल है। दे डोंट नो कि क्लॉट्स आना इज नॉट नॉर्मल, राइट। सो आपने हर जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आएगी, उसकी क्वांटिफिकेशन और वो सारा रूल आउट करना बहुत जरूरी है। वो रूल आउट करके, डोंट से इन योर हिस्ट्री कि मैं पाम कॉइन के हिसाब से चलूंगी या मैं किसके हिसाब से चलूंगी। यू जस्ट नीड टू कीप ऑन डूइंग इट। आपने उसको बोलते जाना है, आप उसको खुद रूल आउट करोगे, अपने पाम कॉइन को जहन में रखें और रूल आउट करें। सारी गायनी की कॉजेज, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपने किया था, बट यू डोंट नीड टू से कि मैं पाम कॉइन कर रही हूँ। जब आप ये सारा कर लोगे, उसके बाद आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रूल आउट करनी है कि इस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग से क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्वालिटी ऑफ कंपेयर लाइफ, करना यस है मैडम। कि ये अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, दिस एचएमबी, हाउ मच इज इट अफेक्टिंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ। गायनी के अंदर हमने हर ट्रीटमेंट पेशेंट को देनी होती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट कि वो कैंसर या ऑन्कोलॉजी का पेशेंट हो। अगर तो वो नहीं है, तो जो भी सिम्टम है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है।
ये उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस किस तरह से अफेक्टेड है, HMB कितनी ज्यादा उसको है, उससे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या अनीमिया उसको कितना हो गया, जिससे उसकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, HMB itself से many patients even have to leave their jobs, they cannot go to their jobs because of this HMB। वो इतनी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उनको होती है कि उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है, तो इट गेट्स सो एम्बैरेसिंग फॉर देम एट टाइम। तो आपने वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्वांटिफाई जरूर करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सिम्टम, ठीक है। सो वो कर लिया। उसके बाद डीडी, सारा डीडी के अंदर आपने आप कॉइन रख लो, जो भी रख लो, वो सारा रूल आउट करना है, ठीक है। देन देयर वाज अ मैस, बिकॉज अल्ट्रासाउंड में दे दिया मैस। कई दफा पेशेंट अपने मुंह से कह रही होती है कि मुझे मैस, सॉरी एक मिनट एक्सक्यूज मी, कई दफा ना पेशेंट अपने मुंह से कह रही होती है कि मुझे इस तरीके से मुझे मैस है, मैस एब्डोमेन आ गया है मेरे अल्ट्रासाउंड के ऊपर, और वो HMB के साथ होती है, विच विच कैन बी, जिसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि फाइब्रॉइड में बी द रीजन। सो उस केस में आपने क्या करना है, जब उसने मैस कह दिया या आपको किसी ने कह दिया हुआ है कि, सॉरी, जब आपको किसी ने मैथ्स कह दिया या आपको एग्जामिनेशन पे मिल गया या अल्ट्रासाउंड पे आया हुआ है, तो फिर आपने थोड़ा सा एग्जामिनेशन के अंदर भी बल्कि पहले हिस्ट्री के अंदर उस मैथ्स के सिम्टम्स के, हैवीनेस, लोअर एब्डोमेन, कोई यूरिनरी उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या उसको डिफेकेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसको रिकरिंग यूरिनरी मिक्चुरेशन, या फिर उसका रिटेंशन, कई दफा मैथ्स अगर इंटीरियर वॉल का हो तो वो ब्लैडर को अफेक्ट कर रहा होता है, या यूरेटर का कुकिंग किंग यूरेटर कह रही हूँ, यूरेथ्रा की नेक ऑफ ब्लैडर को तंग कर रहा होता है, और वो कई दफा ये ज्यादा इरिटेट कर रहा होता है, या फिर वो रिटेंशन कर देता है। सो ये सारी हिस्ट्री भी इसके साथ आपने रूल आउट करनी होती है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के अंदर आपने ठीक किया, बट देखो, जब हिस्ट्री, जब जनरल फिजिकल तो हो गया, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज HMB थी, तो उसके अंदर आपने उसका पैलर और वो सारा रूल आउट करना था। बट जो अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है और आपका पेल्विक एग्जामिनेशन है, उसमें आपके एग्जामिनर के कान खड़े में, वो एग्जामिनेशन आपको बहुत हाई मार्क्स में पास करा सकता है, क्योंकि ये वो एग्जामिनेशन है जो जो दुनिया का और कोई बंदा कर ही नहीं सकता सवाए गायनेकोलॉजिस्ट के। तो फिर जब आप करो या आप बोलो तो उसमें जरा सी भी कोई मिस्टेक या उसमें आप छोड़ नहीं सकते हो। और एग्जामिनेशन का मकसद क्या है? देखो, हिस्ट्री एग्जामिनेशन का हमारा मकसद है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाकर, मिनिमम लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फिर इन्वेस्टिगेशन हमें कंफर्म करता है कि उस डिफरेंशियल में से आपका कंफर्म डायग्नोसिस क्या है, राइट। So when you are examining your patient, the DD or the differential diagnosis should be that list of three or two or three or four things should be in your mind. When you're doing abdominal examination, you have to start with a superficial examination, deep palpation for to rule out tenderness. थोड़ी बहुत हम विस्ट्रोमेगैली भी देख लेते होते हैं। उसके बाद जब हम मैथ्स को देख रहे हैं, आपने ठीक बोला, बट आपका सीक्वेंस इतना वो मजे का नहीं था। मैथ्स के अंदर साइज इज इम्पोर्टेंट, इट्स ओरिजिन इज Right. इम्पोर्टेंट, हमें लोअर लिमिट में बताएगा कि लोअर लिमिट ऑफ द यूट्रस इज रीचेबल और नॉट। इफ इट इज reachable, it's more of an adnexal mass. If it is not reachable, it indicates that it must be a uterine mass. If it is a uterine mass, then we can talk in terms of weeks also. It's a 30 weeks or a 20 weeks or 18 weeks or 12 weeks or whatever. वो हम बोल सकते हैं, but if the mass is palpable on abdomen, it has to be more than 12। तो हम which means कि यूट्रस का साइज 12 से ज्यादा है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैथ्स का साइज, मैं हमेशा अपने बहुत सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ, बट हमेशा मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम मैथ्स का साइज पेशेंट के ऊपर एग्जामिन करके बताते हैं, तो वो तब एग्जैक्ट हो सकता है जब किसी बोनी लैंडमार्क से हम मेजर करें। जैसे कि सिम्फिसिस प्यूबिस से कंपेयर करके हम ऊपर जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 12 वीक्स या 12 सेंटीमीटर साइज है इसके मैथ्स का, राइट। और तो हम एक बोनी लैंडमार्क ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी। और दूसरी चीज ये कि जब हम बोनी और इसी तरह जैसे बाजू के ऊपर कोई है तो एपिकोडाइल से हमने मेजर कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर वो एब्डोमेन में है और किसी लैंडमार्क से रिलेटेड उसका कहीं कोई निकली आए ओरिजिन हो। नहीं है, या वी डोंट हैव एनी बोनी लैंडमार्क जिससे हम ले जाके मेजर कर सकें कि इतना है इसका साइज, तब तक हम उसका एग्जैक्ट, सॉरी म्यूट पे करिए, तब तक हम उसका साइज मेजर नहीं कर सकते। सो इफ लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, इट इज एन एटिनेक्सल मास,
विच मीन्स कि आप उसका अप्रोक्सीमेट साइज बोलोगे। आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली 6 into 4 centimeter साइज, क्योंकि लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, यू डोंट हैव एनी बोनी लैंडमार्क जिससे लेके आप उसका मास मेजर करो। सो आप बोलोगे 5 into 6 centimeter, और इवन इफ यू से एन एग्जाम और एन ऑरेंज साइज्ड मास या लेमन साइज्ड मास या वॉलनट साइज या जो भी, आप उसका किसी रियल लाइफ से कंपेयर करके भी बोल दोगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट हैव एनी एग्जैक्ट बोनी लैंडमार्क जिसके साथ आप उसको ले जाके मेजर कर रहे हो। बट इफ लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, विच मीन्स इट मस्ट बी यूट्राइन, और आप सिर्फ प्यूबिस से ले जाके मेजर कर रहे हो, तो फिर आप मेजरिंग टेप से एग्जैक्ट मास मेजर करके एग्जामिनर को बताओगे, राइट? उसको अपने साइट बोल दी, साइज बोल दिया, सरफेस बोल दिया, कॉन्टूर बोल दिया, उसके मार्जिन्स बोल दी आपने, उसका मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरलाइंग स्किन का कलर इज इंपॉर्टेंट, ओवरलाइंग स्किन का टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, कि बाकी बॉडी से ज्यादा तो टेम्परेचर नहीं है, विच इंडिकेट्स कि इन्फेक्टिव मैस तो नहीं है। तो ये सारा आपने जरूर इसको रूल आउट कर लिया एग्जामिनेशन पे। बट एंड ऑल्सो, if there is a mass, either it's uterine or it's adnexal, there is a pelvic mass, तो it's better you always, आपने एब्डोमेन में साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड जरूर देखना है, यानी कि परकशन नोट देखना है। अगर आपको फ्लैंक्स में डल मिले तो आपने करवट दिला के फ्लूइड थ्रिल देखनी है, वरना नहीं देखनी। सो इस पेशेंट के अंदर भी आपने वो सारे स्टेप्स करने हैं परकशन के। अगर फ्लैंक्स में डलनेस मिली तो आप उसे करवट दिलाते हो और आप फिर कहते हो कि आई चेक फॉर द फ्लूइड थ्रिल। सो ये सारा एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो गया। उसकी स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन में आपने सिर्फ बोलना है साइड, साइज, शेप, सरफेस, मार्जिन, बॉर्डर्स, ओवरलाइंग स्किन, टेंडरनेस, एवरीथिंग, टेम्परेचर, वो बोल के फिर आपने बोलना है कि देयर वर नो साइंस ऑफ फ्लूइड और आई विल चेक फॉर द साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन। ठीक है? परफॉर्मेंस में आपने फिर वो परफॉर्म करके प्रकशन दिखानी है। एक चीज पेल्विक एग्जामिनेशन, उसी तरह पेल्विक एग्जामिनेशन इज लाइक pass or fail thing, or even very high scoring thing if you do it really well. So patient is there with a heavy menstrual bleeding, number one, number two with a mass on ultrasound, ठीक है? इसके पेल्विक एग्जामिनेशन में जो हमारे माइंड में डीडी चल रही है, थोड़ी सी मैं बोल भी देती हूँ। हमारे माइंड में डीडी चल रही है फाइब्रॉइड भी, चलो अल्ट्रासाउंड पे है, बट अगेन हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो हमने पूरा ठीक करना है ना। तो दूसरी डीडी चल रही है एडिनोमायोसिस की मेनली, राइट? बाकी के चलो जितने भी डीडीज हो, सो इसको लेकर जब आप पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे, आपने यूट्रस की इंडिविजुअली यूट्रस के आपने एंटी वर्जन, रिट्रोवर्जन, आपने उसकी साइज पे, उसकी उसकी कंसिस्टेंसी पे, एडिनोमायोसिस में वो सॉफ्ट होगा, फाइब्रॉइड में वो फर्म होगा, आपने उसकी टेंडरनेस पे कमेंट करना है, फिर इस मैस को के ऊपर दोबारा से कमेंट करना है, वही सारी चीजें, साइड, साइज, सरफेस, टेंडरनेस, मोबिलिटी, एवरीथिंग, और फिर आपने इसके एडिनेक्सा पे कमेंट करना है, राइट? तो और फिर आपने अपने व्हेन यू रिमूव योर फिंगर्स, यू हैव टू लुक एट योर फिंगर्स इफ दे हैव एनी ब्लड और डिस्चार्ज, वो उस पे कमेंट करना। सो ये सारा जो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें एक भी चीज, इफ यू फॉरगेट टू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, तो मजा नहीं आया, अगर आप उसकी मोबिलिटी, टेंडरनेस, आपने उसकी हर हर चीज पे पूरी तरह प्रॉपर कमेंट करना है, तो ही आपका आपका एग्जामिनेशन मुकम्मल है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज दिस इज वन एग्जामिनेशन जिसमें हमने डायग्नोसिस बनाना है। At times when we are doing OPD in a government hospital or in a very far off hospital also, we cannot depend only on the ultrasound. Our examination has to be better than an ultrasound even. ये बात याद रखना, आपका एग्जामिनेशन इस कदर अच्छा हो कि आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत ही ना हो। ठीक है? अच्छा, एक और बात भी मैं बताती हूँ। whenever there is a mass and you're examining your patient either in your real life or in your exam, जब आप एग्जामिन कर रहे हो पेशेंट को, तो एक चीज और माइंड में रखो। देखो, द पेशेंट, एक पेशेंट आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आइडिया हो गया कि फाइब्रॉइड की पेशेंट है या जिस भी चीज की, आप देर इज अ mass, you have to remove the mass, you're examining your patient, you're doing abdominal examination and you're doing pelvic examination. While doing your examination, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप सोचो कि अगर मैं इसके ऊपर सर्जरी भी करूंगी तो मैंने इंसिजन किधर देना है, आइदर इट्स गोइंग टू बी ट्रांसवर्स लोअर एब्डोमेन, लोअर इंसिजन,
or I'll need a vertical midline incision. So whenever you are examining your patient, keep this thing in your mind also. Okay. तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने इसमें एग्जामिन करते हुए इस मैथ्स को निकालना कैसे, ठीक है? तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। सो गुड। ठीक है सना, नाउ लेट्स कम टू द इन्वेस्टिगेशंस। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, कोई चीज ऐड करनी है तो प्लीज कर लें अभी। मैडम इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक नोज, माउथ, हम वो भी तो रूल आउट। डेफिनेटली, बिल्कुल। आपने वो नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज, डेफिनेटली याइट्रोजेनिक कॉज, कोई कोई येलोनेस उसकी ऑफ आईज और हेपेटाइटिस या रीनल डिजीज। परफेक्ट, बिल्कुल करना है वो सारा, तो उसकी हिस्ट्री में किसी ने कुछ और ऐड कर। सो जी, इन्वेस्टिगेशन है ना? Ji, ma'am. First of all, I will ask about her baseline investigation, hemoglobin, total leukocyte count, and the platelet count. Madam, will you provide me the hemoglobin level? हीमोग्लोबिन पेशेंट का 8 है, प्लेटलेट्स Okay, नॉर्मल है, madam. टीएलसी भी नॉर्मल है। Okay, 8 madam. MCV, MCH, and MCHC to rule out the सारे iron नो है। deficiency anemia. माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। Okay, madam. Serum ferritin is available or not? लो है। Okay. Madam, I want that viral marker HP surface antigen anti-HCV, and then नेगेटिव, ऑल आर okay. नेगेटिव। Okay, midstream urine if available to check the UTI, as my patient says the pressure वो symptoms. नॉर्मल है। Okay, madam, in specific, I 6 to want 8 abdominal पर्सन्स pelvis, हैं, चलो। 6 to 8 6 pulses. to 8 पर्सन्स। Okay. Ultrasound abdominal pelvis to check the endometrial thickness, myometrial echogenicity, any tubo-ovarian pathology, any ascites is present, any mass. गुड। आगे मैथ्स का भी बोल दो ना, इफ एनी मैथ्स, तो साइट, लोकेशन, साइज, वो Yes, सारा कुछ। yes, sites size. वो वही है And सारी फाइंडिंग जो मैंने आपको सिनेरियो में दी थी। madam, okay, fibroid, 5 into 6 anterior wall and 2 into 3 posterior wall. Madam, Figo type, एंटीरियर वॉल इंडेंटिंग द कैविटी। intending the cavity. Okay. Madam, should I proceed? और कुछ मांगना है? LFTs, RFTs, if available. Need तो नहीं है क्यों? मैडम इसमें, नीड तो तो नहीं है। फिर क्यों मांग रहे हो? तो कोई नहीं, वैसे पसेल दे दिए थे तो मिड स्ट्रीम यूरिन या कल्चर मांग लेते हैं, ठीक है। और हम्म। एनी अगर हाँ, अल्ट्रासाउंड KUB to rule out any hydronephrosis if नहीं नहीं, बोंगिया नहीं मारनी। चलें ठीक है, बस इतना ही है, मुझे और नहीं है। हाँ शाबाश, इतना भी काफी है। गुड। जी। ठीक है, बाकी ब्लड ग्रुप शायद आपने मांग लिया होगा। और उसके अलावा जो है, मैडम हिस्ट्री पे ये भी तो पूछना था कि डिजायर फॉर फर्टिलिटी हो सकता है उसकी पहले प्रीवियस डॉटर्स हो एंड जी शी जी वांट्स मैडम, ये ये तो चीज मैंने अच्छी अभी बात है। मैनेजमेंट में आके इनको याद करानी है बातें। नहीं मैम, मुझे याद आ गया था, मैंने याद आ गया था उसी वजह जब हिस्ट्री बहुत पढ़ रही थी। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यस मैम, बहुत। पैरा। जी, बल्कि आपने कुछ एक्स्ट्रा बातें बोली थी हिस्ट्री में, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में आपने पता नहीं ओवुलेशन, इंडक्शन, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, इसमें वो ज्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ठीक है ना? ठीक है। और हाँ, ये आप पूछ सकते हो कि फाइब्रॉइड का उसको पहले से पता है या कब का पता है। उसके अलावा ये कि तो हिस्ट्री में इंस्टेड अगर आप फोकस चलो, डिजायर फॉर फर्टिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री में भूल भी आए हो तो मैनेजमेंट में आप बोल सकते हो कि चलो जी आई मैडम, मैं डिस्कस विद, आई वुड लाइक मुझे टू याद सिट था। विद हर। तो अगर आप पीछे जी जी भूल आए हो, इसलिए मैंने मेंशन बहुत नहीं किया कि शायद आप मैनेजमेंट में आगे कवर कर लोगे। जी मैडम, वो मुझे हम याद था, आगे भी मैंने लिखा डिस्कस हुआ था। करते हैं। ठीक जी है, जी। गुड नाजिश। और कोई बात?
चलो गुड। सो आगे चलते हैं जी। सना, फिर आप मैनेज भी करो पेशेंट को। Okay. I will offer support to the patient, explain the diagnosis that she is having a fibroid and she is having a heavy menstrual bleeding due to the most likely fibroid, and which and then I will ask about her the uh, mm, is she taken previously like any OCPs taken or not? Madam, medical treatment इसने ली है नहीं ली है वो मैं पूछूंगी इससे पहले। पूछी थी आपने हिस्ट्री में, बड़ी डिटेल में आप पूछ रहे थे कि हाँ तो कॉन्ट्रासेप्टिव मैडम पिल्स मुझे ले रही है बताएं। कि नहीं ले रही है, क्या नहीं। तो मैडम उसने ली है नहीं ली मुझे ये बताएं तो फिर मैं मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंगली करूंगी नहीं, ना। वो 8 HB के साथ आ गई है, उसने कुछ नहीं लिया। ओके। Okay, I will offer support to the patient, explain the diagnosis that she is having a heavy menstrual bleeding due to most likely this is due to fibroid, and then I will admit my patient and I will build up her hemoglobin level. If my patient have sign and symptom of anemia like shortness of breath, so I will transfuse the 1 pint of the PEG cell volume to relieve her symptoms. If my patient not have the like shortness of breath, so I will put her on oral iron or IV iron, and I will also give her antibiotic to rule out to treat the UTI, and I will give her the different treatment option as hormonal, non-hormonal, and the definitive. In non-hormonal, I will advise her that she should took OCPs for 6 months. गलत हो गया। मेडिकल Uh, ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। जी जी। I will give her चलो, the मैंने हिंट option दे of दिया है, वरना इस बात पे जी आप फेल हो चुके हुए हो। जी मैडम मैं मेडिकल वो चुप हो ट्रीटमेंट। गई। जी हाँ इसका चलो, कोई रोल अब नहीं है। चलो शाबाश पे I will, बोलो दोबारा से। as my patient, I will ask about her that she want fertility desire or not. As my patient want fertility, so I will give her the option of the open myomectomy and uterine artery embolization. And if my patient does not want fertility as she concerned of the heavy menstrual bleeding, so I will give her option of the uterine artery embolization, endometrial ablation, myomectomy, and the definitive treatment will be the hysterectomy. हम्म, अच्छा चलो, If बस she is, पता है if बात she, ये, व्हाट आई हैव नोटिस्ड पिछली कुछ क्लासेस में, आप लोग इतने बुरे हो नहीं हिस्ट्री एग्जामिनेशन में। इन्वेस्टिगेशंस भी आप लोगों की ठीक ही हैं, लेकिन मैडम मैनेजमेंट बुरी है। मैनेजमेंट ऐसी है सबकी कि पास ही नहीं हो सकते। तो प्लीज मैनेजमेंट पे बहुत टाइम दो। एक पूरा पैटर्न बनाओ, पहले ये बनाओ, पहले तो ब्रेकिंग द न्यूज ना कि उसे है क्या, उसे डायग्नोसिस जी बताने का। फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है ना काउंसलिंग के लिए, ऑफर सपोर्ट, ये वो, इन बातों पे टाइम नहीं वेस्ट करना। फर्स्ट जो ओके आपकी स्टेटमेंट है ना, आप कहोगे कि आई विल टेल डायग्नोसिस टू द पेशेंट। पहले डायग्नोसिस बताया पेशेंट को और अटेंडेंट्स को कि उसको है फाइब्रोइड। दूसरी चीज जो पेशेंट सुनना चाहता है, ये आपके नॉर्म जो मैं बातें एग्जाम के लिए बोलती हूँ ना, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करना। पहली चीज आपने बोली कि उसको है क्या। दूसरी चीज कि जो है कहीं वो कैंसर तो नहीं है। पेशेंट की नींदें उड़ी होती हैं कि अल्ट्रासाउंड पे मैस आ गया, ये आ गया, नेट पे गलत गलत चीजें उन्होंने दिस सर्च इज की नॉन होती हैं, वो समझते बिनाइन पता नहीं क्या है। कंडीशन। यस मैडम इट्स हाँ, बिनाइन तो कंडीशन। आपने सबसे पहले पेशेंट को गायनी में बताना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2, इट्स कैंसरस और नॉट कैंसरस। नंबर 3, कि अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको उसे एडमिट करना है कि नहीं करना, और आप अब उसका नियर फ्यूचर में क्या प्लान करने लगे हो, राइट। तो आप जब अपनी पहली काउंसलिंग बोलोगे इसमें गायनी के अंदर, उसमें ये सारी बातें, उसके बाद कोई आपने चीज ऐड करनी है जैसे यूटीआई है, अनीमिया है, वो बोलोगे। और तीसरी चीज में अपनी उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। अच्छा, उसके बाद आपने इसी पूरे एम ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में बोलना है एज योर प्लान, राइट। क्या बोलना है सबसे पहले कि मेरी पेशेंट का HB इज 8। आई विल रूल आउट इफ शी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। बहुत सिम्टम्स हैं तो ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड। नहीं है सिम्टम्स तो क्या करोगे, तो माय ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया विल डिपेंड ऑन द डेट ऑफ सर्जरी। अगर मैं सर्जरी 2 महीने बाद प्लान कर रही हूँ, महीने बाद प्लान कर रही हूँ, तो मेरी सर्जरी की जो ट्रीटमेंट डेट ऑफ ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा कि मैंने उसका अनीमिया कैसे ट्रीट करना है। शी इज अ केस ऑफ HMB, राइट, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग
जो फाइब्रॉइड की वजह से है। अगले पीरियड से पहले मैं इसकी ट्रीट कर दूं, वो फाइब्रॉइड निकाल दूं तो बेहतर है, वरना मैं आज इसको आयरन लगाऊंगी या मैं ओरल आयरन दूंगी और मैं इसके पीरियड्स का वेट करूंगी, या मैं इसको ब्लड लगाऊंगी, हफ्ते बाद उसको पीरियड्स आने हैं, तो इसका तो प्रॉब्लम ये हो जानी लॉस है हो कि जाएगा इसको तो ब्लड। वही ब्लड सारा निकल जाना है, तो व्हाट इज द पॉइंट। ठीक है, तो माय अनीमिया, करेक्शन ऑफ अनीमिया एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ सर्जरी। डेट तो ऑफ द आपने सर्जरी। यूं बोलना है, ठीक है। पता नहीं हमारी दूसरी प्रेजेंटर आई है कि नहीं आई, लुबना आई हुई है शायद, वो भी नहीं है। चलो अच्छा, फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इसको। सो आपने ये बात करनी है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इन सारी इन्वेस्टिगेशंस में अगर आप सबसे पहले बीटा एचसीजी भी मांग लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चलो ठीक है। खैर, तो मैं आगे चलती हूँ। तो आपने प्लान, अच्छा, तो आपने नीमिया को ट्रीट उसकी डेट ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता है। अगर तो अभी जाहिर है बिकॉज अगले पीरियड से पहले ही ट्रीट करना है, 8 HB है, तो यस, उसका पैक सेल ट्रांसफ्यूजन और HB बिल्ड करके उसको फिर आप फर्दर। अच्छा, फिर आपने बताना है कि फाइब्रॉइड इज इंडेंटिंग इनटू द कैविटी। आई विल गिव हर ऑप्शंस। कोई और मुझे बताएगा कि क्या ऑप्शंस देंगे नंबर 1 2 3 करके पेशेंट को। उसकी वजह यह है कि जो नंबर 1 पे होगा वो चीज है जो पेशेंट के लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू यू, और नंबर 2 पे फिर। अब आप मुझे कौन बताएगा कि इस पेशेंट में ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे कैसे दी जाएंगी। मैडम, इसमें हम सबसे पहले उसको लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी का ऑप्शन देंगे वर्सेस ओपन मायोमेक्टमी। हम्म। और मैडम ये इंटेंट कह रही है ना कैविटी को, तो कैसे लेप्रोस्कोपिक? वो हम बात करते हैं, ठीक है नाजिश, उसको बोलने तो फिर बात भी करते हैं इस पे भी, ठीक कह रहे हो जी। और आगे। मैडम और मैडम आगे अगर उसकी फर्टिलिटी डिजायर नहीं है तो फिर हम उसको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कंसिडर जो है मतलब ऑप्शंस में हम उसको जो है ना वो कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है, और मैडम अगर उसकी फर्टिलिटी डिजायर नहीं है तो फिर हम हिस्टेक्टमी के लिए उसको जो है ना वो कर सकते हैं नंबर 3 पे हिस्टेरेक्टमी। अच्छा, हिस्टेक्टमी। पेशेंट की फर्टिलिटी डिजायर नहीं है, फिर आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस 1 2 3 पे कैसे होंगी। हाँ मैडम, फिर उसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नंबर 1, हम्म। नंबर 2 हिस्टेक्टमी। ठीक है। अच्छा, सो पेशेंट की ट्रीटमेंट डिजायर्स नहीं है, शी इज पैरा 3, लास्ट चाइल्ड बॉर्न 5 years बैक है, उसके शी इज ऑल राइट विद वट एवर बॉय गर्ल जो भी उसके पास है, शी इज ओके। शी इज हियर विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आप उसे माइमेक्टमी की ऑप्शन नंबर 1 पे दे रहे हो। 5 साल बाद ये पेशेंट दोबारा फाइब्रॉइड बना के आ जाएगी, तो क्या करोगे, राइट। सो आप पेशेंट को बताओगे कि फर्टिलिटी डिजायर्स के अकॉर्डिंगली अगर डायरेक्ट हम हिस्टेरेक्टमी का भी फैसला करें तो वो गलत नहीं होगा। हाउएवर बिकॉज ऑफ द सोशल रीजंस, या बिफोर कुछ लोगों ने स्टडी किया होता है कि मैं अभी इस उम्र में हिस्टेरेक्टमी करा लूंगी तो 5 साल पहले मुझे मेनोपॉज आ जाएगा, या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजंस, अगर वो रिफ्यूज करे तो दैट्स ओके, बट हिस्टेरेक्टमी में यू हैव टू टेल हर ओवरीज कंजर्व होंगी, लेकिन ये निकलेगा ताकि आपका रिकरेंस ना हो। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज अ गुड थिंग ऑल्सो, यस, नंबर 1 पे आप वो भी रख सकते हो, स्पेशली इफ शी डजंट हैव फर्टिलिटी डिजायर्स, बट बिकॉज इसके अंदर एक से ज्यादा फाइब्रॉइड है, तो द पर्सन हु इज डूइंग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हैज टू बी मोर स्किल्ड, ताकि वो एंड आर्टरीज तक जाके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स को खत्म करे। जहां तक बात है कि पेशेंट की अगर फर्टिलिटी डिजायर्स है या शी इज यंग एंड शी रिफ्यूजेस फॉर हिस्टेरेक्टमी, यू विल फाइंड वेरी, बहुत रेयरली आपको कोई मिलेगा जो 36 पे या 30s में कहे कि मैं हिस्टेरेक्टमी करा लूंगी। सो डेफिनेटली पेशेंट विल से कि मैं माइमेक्टमी करा लूं तो बेहतर है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, इट्स एक्सपेंसिव एंड देन अगेन इट्स नॉट 100%। सो वो अगर कहती है कि मैं माइमेक्टमी कराऊंगी तो माइमेक्टमी की चॉइस ओपन वर्सेस लेप्रोस्कोपिक। ओपन मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि सना वाज राइट, इट्स इंडेंटिंग इनटू द कैविटी, यू हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग अप द कैविटी। कैविटी इसलिए ओपन होने की जरूरत लग रही है क्योंकि कैविटी के अंदर तक गया हुआ है, इट्स फिगो टाइप 3 और बियॉन्ड प्रोबेबली, या 2 और बियॉन्ड जो कि जरा अंदर तक आया हुआ है, मोर देन 50% या लेस देन 50% या जो भी। और अगर आप लेप्रोस्कोपिकली करते हो एंड द कैविटी इज ओपन,
तो एट टाइम्स लैप्रोस्कोपिकली फिर आपको बहुत जबरदस्त क्लोजर, उसके लिए आपकी सूचरिंग हो जाती है। बट अगेन आप इफ यू आर स्किल्ड इनफ, इवन इफ यू आर स्किल्ड इनफ, उसके अंदर भी अगर इंटेंडिंग द कैविटी और कैविटी ओपन हो रहा है तो रिकमेंडेशन है कि ओपन इज बेटर देन लैप्रोस्कोपिक है। मैं खुद लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मैं खुद ये बात कह रही हूँ। उसकी वजह ये है कि बड़ी जबरदस्त क्लोजर ऑफ दैट कैविटी अलोंग विद द मायोमेट्रियम एंड द डेड स्पेस इज इम्पोर्टेंट। तो मोस्टली फिगो 4 एंड बियॉन्ड में आप लैप्रोस्कोपिक इज ओके, बट 2 और 3 में जिसमें कैविटी के अंदर ज्यादा गया हुआ है, उसमें आपकी जो है ओपन इज बेटर, क्योंकि क्लोजर बेहतर हो जाएगा उसके अंदर। और किसी ने चैट के अंदर बात की है कि व्हाई नॉट हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी इन दिस केस, इसके अंदर इंडेंट कर रहा है। हिस्टेरोस्कोपिक मैडम उसका टू मायोमेक्टमी स्टेज होता है ना। 0 या 1 में बेस्ट हो जाती है, लेकिन 2 में अगर 50% कैविटी में और 50% मायोमेट्रियम में, उसके अंदर आपकी हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन, जिसमें हम रिसेक्टोस्कोप यूज करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि फिर 50% फाइब्रॉइड आप डायमेट्री में छोड़ रहे हो जो दोबारा रीग्रो हो सकता है। तो इसलिए तो 0-1 तक इज ओके। 2 भी कई दफा हो जाता है जिसमें ज्यादा वो अंदर आया हुआ है और कम मायोमेट्री में है, लेकिन 2 में भी अगर 50% मायोमेट्री में गया हुआ है तो बेहतर होता है कि वो आप ऊपर से निकाल लो। सो अगेन, और उसके अलावा फाइब्रॉइड जो है, अगर आप लेप्रोस्कोपिक करोगे और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा दिए हुए अल्ट्रासाउंड पे, इवन कई दफा 2 दिए होते हैं, हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि फाइब्रॉइड जब अल्ट्रासाउंड पे 2 दिए होते हैं तो वो इन एक्चुअल इंट्राऑपरेटिवली 2 से ज्यादा होते हैं यूट्रस में। और लेप्रोस्कोपिकली यू आर जस्ट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, यू आर नॉट यूजिंग योर फिंगर्स, आप पैल्पेट नहीं करके देख रहे होते हो। तो इसलिए लेप्रोस्कोपिकली जो नजर आ रहा है सिर्फ वो निकलेगा, जो फील हो रहा है वो नहीं निकलेगा, तो वो रह जाएगा अंदर ही। और अगर जो फील होता है वो रह जाएगा तो डेफिनेटली आपका फिर वो रिकरेंस हो जाएगी। तो इसलिए जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स अल्ट्रासाउंड पे हो, या फिर जब आपका 2 या 2 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड पे दिए हो, तो इट्स बेटर कि आप उसको काउंसल कर दो फॉर ओपन। बट उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक और है। इस तरह के पेशेंट में इफ यू हैव फैसिलिटी, यू शुड हैव और यू शुड ट्राई टू हैव एटलीस्ट, क्योंकि अब आप सब माशाल्लाह नए नेक्स्ट उस पे आ रहे हो, तो यू इंशाल्लाह यू विल हैव इट इन योर हॉस्पिटल्स। तो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी, इस तरह के पेशेंट में इवन अगर मल्टीपल भी हैं तो इट्स बेटर टू डू हिस्ट्रोस्कोपी फर्स्ट एंड देन लैप्रोस्कोपी, सो दैट यू शुड नो एग्जैक्टली कि सब म्यूकोजल है कि नहीं, फीगो की कौन सी क्लासिफिकेशन वाला फाइब्रॉइड है, मल्टीपल भी हैं तो वो किधर किधर है, बेशक ओपन का बाद में फैसला है। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी वाला करके ट्यूबल स्टेटस हर चीज देख लिया, अगर वो उसके आगे फर्टिलिटी डिजायर्स हैं तो उसके बाद यू डोंट नीड टू गिव अ वेरी बिग इंसिजन, यू कैन गिव अ वेरी स्मॉल इंसिजन एंड यू डोंट नीड टू डू मैसिव हैंडलिंग जो लोग करते हैं ओपन सर्जरी में मायोमेक्टमी में। क्योंकि एक बात याद रखना, मायोमेक्टमी में के अंदर रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड इज नॉट ओनली द पर्पस दैट नीड्स टू बी अचीव्ड। आपका फाइब्रॉइड रिमूवल सिर्फ पर्पस नहीं है, आपका पर्पस ये है कि मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव एडिशंस बने, पेशेंट की फर्टिलिटी, अगर उसका आगे फर्टिलिटी डिजायर स्पेशली है तो उसकी ट्यूब्स पेटेंट रहे, शी शुड, आपका सक्सेस मायोमेक्टमी का ये है कि पेशेंट प्रेग्नेंट होके आई है वापस, राइट, अगर वो फर्टिलिटी डिजायर वाली है, या उसको कोई क्रॉनिक पेल्विक पेन ना रहे, फाइब्रॉइड्स दोबारा ना बने। आपकी मायोमेक्टमी का, सानिया मैं आपकी बात सुनती हूँ 2 मिनट। सो आपकी मायोमेक्टमी का जो मेन मकसद है रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड तो है, फिर वरना याद रखना रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड तो सर्जन्स भी कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड तो शायद ओटीए भी पेरीफ्री में खड़ा खड़ा कर रहा है, बट वो सर्जरी नहीं है। सर्जरी वो है जिसके अंदर पेशेंट का बेस्ट प्रोग्नोसिस, बेस्ट रिजल्ट हो, उसकी डिसीजंस ना बने, उसकी पेन ना रहे। मैसिव सर्जरी, डूइंग रॉन्ग इंसिजंस ऑन द यूट्रस फॉर रिमूविंग द फाइब्रॉइड्स, ये सब बहुत बड़े मिस्टेक्स हैं। सो आपको पता होना चाहिए जब फाइब्रॉइड्स है आपने यूट्रस में इंसिजन को किस तरह देना है, सूचरिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। वो जिस तरह कहते हैं ना, मेटिकुलस सर्जिकल टेक्निक इज इम्पोर्टेंट। वो मायोमेक्टमी इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव प्रोसीजर, वो नहीं होना चाहिए। शायद किसी ने क्वेश्चन करना था, आप कोई कमेंट या क्वेश्चन है ऐड कर लो और फिर हम इसकी सर्जरी पे चलते हैं जी। मैडम जी देखिए, मैडम पता होता है सब, लेकिन मुझे बहुत जैसे डर लगता है। अगर मैं, मेरे जहन में बहुत सी चीजें थी, जैसे मैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन बोलूंगी तो आप बोलेंगी एंडोमेट्रियल एब्लेशन तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक एक में करते हैं ना हम लोग, ठीक है, फर्टिलिटी अगर वो नहीं चाहती।
और दूसरी बात ये है कि मैं अगर वही बोल रही थी कि अगर मैं ओपन बोलती तो वो बोलते कि रिकरेंस ज्यादा है, तो मैं इसमें फिर चुप हो गई थी। मैं क्या सोच सोच के बोल रही थी। हिस्टेक्टमी 36 वीक्स पे बहुत कम लोग पसंद करते हैं, और हिस्टेरोस्कोपिक हम लोग मैं करेंगे। बताती हूँ, देखो सना, जी, मैं बताती हूँ एक बात, सॉरी, मुझे तो समझ मैडम आ मैं गया आप बहुत क्या इसमें कहना चाह रहे हो। कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं ना। देखो, एक्सपेक्ट एक जी, चीज तो ये है कि एग्जाम पास उस दिन होना है जिस दिन आपने अपने एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बैठना है वहां पे, ठीक है। यस और मैडम। वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपको क्लैरिटी हो सब चीजों की। डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब क्लैरिटी हो। एंडोमेट्रियल एब्लेशन सिर्फ वहां जब ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल ओरिजिन की है, यहाँ जी, ब्लीडिंग फाइब्रोइड की यहाँ है। नहीं। जी एक फाइब्रोइड में एंडोमेट्रियल एब्लेशन इंडिकेटेड ही नहीं है, ना ही हार्मोनल ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है जिसके अंदर पेशेंट इंडेंटिंग द कैविटी के साथ स्पेशली आए, या कई दफा मल्टीपल छोटे छोटे 1 1 2 2 सेंटीमीटर के मल्टीपल फाइब्रोइड्स होते हैं, लेकिन वो कैविटी को इंडेंट नहीं कर रहे होते हैं, पर पेशेंट को एचएमपी होती है। लेकिन उसमें भी मेरा मशवरा ये है कि हार्मोनल थेरेपी या मायरीना बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर उन सबका है। साइज मिला के 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बन रहे, राइट। जी, तो आप पेशेंट को काउंसल जी, कर सकते हो कि कैविटी तो इंडेंट नहीं हुई हुई, लेकिन आपके फाइब्रोइड्स इतने सारे हैं फाइबर का कि मुझे साइज आई बहुत हैव टू ठीक है। लुक इनटू द थिंग सर्जिकली। बट मैं मायरीना का एक ट्रायल कर सकती हूँ क्योंकि कैविटी इंडेंट नहीं हुई। यस जहां तो कैविटी मैडम। इंडेंट ही हो गई, उसके अंदर तो मायरीना और फिर तो हार्मोनल बहुत थेरेपी तो साइड पे, एब्लेशन भी बिल्कुल साइड पे। इसके अंदर तो आपको और फैसला करना मैडम है, वो भी है ना, हिस्टेक्टमी वर्सेस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वर्सेस वर्सेस मायोमेक्टिन, मायोमेक्टमी। मैं एक दफा आपको तरीका बताती हूँ कैसे रूल आउट करना है। पेशेंट की फर्टिलिटी डिजायर है तो वो नंबर 1 पे मायोमेक्टमी, ठीक है। पेशेंट की मायोमेक्टिन फर्टिलिटी डिजायर नहीं है, शी इज अ यंग पेशेंट, यू कैन ऑफर पेशेंट। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्योंकि इट इज मिनिमली इन्वेसिव। वो एक मैसिव सर्जरी से उससे बचा रहा है, और फर्टिलिटी डिजायर्स भी नहीं है, तो आप उसको कर सकते हो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ऑफर, ठीक है। अच्छा, अगर उसकी फर्टिलिटी डिजायर्स नहीं है, सॉरी, फर्टिलिटी डिजायर्स नहीं है और शी कैन नॉट अफोर्ड यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, और साथ ही ये कि शी डजंट वांट टू एंड अप इन द रिकरेंस थिंग, तो आप उसको हिस्टेक्टमी ऑफर कर सकते हो। मैंने 36 ईयर्स में हिस्टेक्टमी बड़े एंड पे आकर बोली है, ठीक है। जी, मैंने एंड पे अगर फर्टिलिटी उसकी डिजायर्स क्वालिटी ऑफ नहीं है लाइफ पे बहुत यूट्राइन, अफेक्ट हो रही है। हाँ, मैंने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ही नंबर 1 पे बोली थी। लेकिन अगर यही पेशेंट 42 की होती, अबव 40 होती, ठीक है ना, और या 45 की होती, एचएमपी के साथ है, फाइब्रॉइड्स है, इंडेंटिंग द कैविटी है, तो मेरी नंबर 1 ऑप्शन हिस्टेक्टमी होती, ठीक है। और नंबर 2 पे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होती। जी, मायोमेक्टमी तो इसमें मैंने बोली नहीं, नहीं, सिर्फ तब बोली कि पेशेंट किसी सोशल प्रेशर की वजह से यूट्रस बचाना चाहती है, ठीक है। मैडम। तो जी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एक चीज और भी मेरी बात याद रखना, मैं बीच बीच में कुछ मैम, बातें बोलती हूँ, शायद आपकी जीएनआरएस प्रैक्ट बताती हूँ, जीएनआरएस वो भी बताती हूँ, वो आपकी शायद प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा हेल्प करे। एग्जाम में तो वो बातें ना बेशक याद भी ना है, लेकिन एक बात याद रखना, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। नॉट द डिजीज। ये एक स्टेटमेंट जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी गहरी है। आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, आपने डिजीज को ट्रीट नहीं करना। आप वहां पे पेशेंट को देखोगे, उसकी एज क्या है, उसकी फर्टिलिटी डिजायर्स क्या है, उसके सोशल प्रेशर्स क्या है, उसकी एनीमिया की कंडीशन क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, फिर आप फाइब्रॉइड को ट्रीट करोगे। अगर यही फाइब्रॉइड एसिम्टोमेटिक होता, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती अल्ट्रासाउंड पे, तो सना क्या करते। मैडम दोबारा रिपीट करें प्लीज। एसिम्टोमेटिक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती स्कैन पे, फिर क्या करते। मैडम एसिम्टोमेटिक होती तो फिर मैडम मैं उसको बोल सकती थी कि शी इज एसिम्टोमेटिक एंड नॉट हर अफेक्ट हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। उसके मैडम बाद 6 मंथली टू 1 ईयर हम इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, फॉलो अप्स। मॉनिटरिंग करेंगे, छोड़ सकते हैं उसको। मैंने सवाल किया, मुझे कंप्लीट जवाब दे दो सना या नाजिश। हम्म। Madam, I will counsel my patient about the diagnosis.
and also I will tell her that it is a benign treatable condition, but as far as it is not concerning her regarding her quality of life, so she it can be left intact, and but she should it should be monitored 6 monthly to 1 year with ultrasounds and her symptoms on outdoor basis, and then will be managed accordingly. ठीक है, गुड, अच्छा था जवाब। इसमें आप ये करोगे कि I'll counsel the patient that she is having asymptomatic fibroid, which is an incidental finding on ultrasound. It's a non-malignant condition. There is less than 0.1% chance of it to get malignant, right? इसको आपने इसी तरह ही बोलना है। और उसके बाद आपने कहना है कि however, as it's asymptomatic, so we do not need to do anything about it. Instead, we can do follow-up 6 monthly, so that I need to see that if the size is increasing rapidly or if it becomes symptomatic, then I will have to treat it. ठीक है? मैडम मैं पिछले वाले केस की 1 मिनट में मैनेजमेंट बता दूं, सिर्फ 1 मिनट। शाबाश, बोले, why not? Okay. I will tell the diagnosis to the patient that it's a benign condition and it's treatable. My management will depend upon the age, symptom, quality of life, and its patient fertility desire. I will admit my patient and to correct the anemia. If my patient is symptomatic, so I will transfuse her blood. And if it is not symptomatic, it depend upon the date of the surgery. And I will also give her antibiotic to correct the UTI. And I will give the option of the management. If my patient have fertility desire, so I will give the option of the myomectomy, but I will tell her that she is have recurrence of the 60%, and also give her the option of the uterine artery embolization, but it's expensive, and it need expertise. And if my patient 60% क्या बोला? मैडम मायोमेक्टमी से 60% चांसेस ऑफ द रिकरेंस है, अगर वो ऑप्ट करती है नहीं, फॉर 60% तो बहुत ज्यादा बोला। ओपन सर्जरी में लेस देन 10% रिकरेंस है, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विद मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में 25 to 30% चांस ऑफ रिकरेंस है। 60% तो बहुत ज्यादा है, मैडम एक बुक में लिखा हुआ था 60% है, मेरे पास हो ही नहीं सकता। अगर आप ओपन कर रहे हो तो आप तो पेल्पेट करके सीडलिंग भी निकाल लेते हो, तो देर इज लेस देन 10% चांस, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि वो भी इतने छोटे छोटे शायद बने कि और वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, और दूसरा ये कि मेनोपॉज के बाद तो वैसे ही नहीं बनना ऐसा कुछ। वैसे ही पता चाहिए जी। ठीक है, तो ये भी आप पेशेंट को बता सकते हो। तो बिल्कुल, किसी ने कहा है कि फॉलो अप एसिम्प्टोमेटिक में हम नहीं करते। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रैपिडली ग्रोइंग हो जाते हैं, ऐसा ना हो कि वो 20 सेंटीमीटर का बन के आ जाए या बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप 6 मंथली करते हो, ताकि अगर वो साइज रैपिडली इंक्रीजिंग है तो फिर आप उसको पहले एक्शन ले लो, क्योंकि जितना बड़ा फाइब्रॉइड का साइज हुआ होगा उतनी फिर थोड़ी सी मैसिव सर्जरी हो जाएगी। बिल्कुल, किसी ने शेयर कर दिया ये रिकरेंस। ठीक है, सो गुड, बेटर सना, यू वर बेटर। बट अगेन आपकी हर हर वर्ड में जो है वो सुना जा रहा है वहां पे, और वो मैटर कर रहा है। अब आपने कहा कि आई विल काउंसिल हर दैट शी इज हैविंग फाइब्रॉइड यूट्रस एंड इट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन, देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग सच थिंग्स। पेशेंट आपके पास आया, आपने तो ट्रीट कर ही देना है उसको ना, तो आपने इस तरह की बातें नहीं करनी। तो बिल्कुल गुड। अच्छा, मैडम एक इसके सर्जिकल स्टेप्स हैं जी, नूर जी। मैडम एक जगह मैंने पढ़ा था, अगर ग्रेड 2 फीगो मतलब सब म्यूकोजल फाइब्राइड है तो हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी इन 2 स्टेप प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ था, आप कर सकते मैं हैं। बताती हूँ, पहले उसका मैं बताती हूँ, 50% फाइब्राइड रिमूव करें, मैं फिर बताती हफ्ते हूँ, के मैं बाद बताती हूँ, दोबारा। मैं जी बताती मैम। हूँ, रिलैक्स। ये क्यों होता है? क्योंकि मेरा ख्याल है मेरा हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी का लेक्चर भी होगा, उस पे शायद लेक्चर दो, स्पेशली हिस्ट्रोस्कोपी में। मैं वैसे आप लोग का एक हिस्ट्रोस्कोपी पे अलग से भी एक लेक्चर लेना चाहूंगी, क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू फ्यूचर सारा आप लोगों का अब है ही है। After inshallah you'll do FCPS, you have to do know हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, उसके बगैर आप लोगों का करियर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अब पेशेंट्स आर अवेयर एंड दे आर ऑल्सो अवेयर कि हमने गायनोकोलॉजिस्ट से कराना है, सर्जन से नहीं कराना, और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। जो मायोमेक्टमी होती है, हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ अ फाइब्रोइड की, उसके अंदर आपको फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपी में जो डिस्टेंशन मीडियम आप यूज करते हो वो आपने
बेटा ये आप चैट में कोई लिख रहा है 60%, प्लीज इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। 60% रिकरेंस नहीं है, ये बहुत हाई रिकरेंस है। ये तो मत ही मार दे किसी के फाइब्रॉइड हो जाए तो इसका मतलब है डेफिनेटली रिकरेंस हो जाना है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस में हम कहते हैं, क्योंकि उसको होता है रिकरेंस। फाइब्रॉइड इज नॉट लाइक एंडोमेट्रियोसिस। रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड के बाद अगर अच्छा रिमूवल हुआ है और छोटे छोटे सारे निकल गए जो कि ओपन में होता है, तो फिर रिकरेंस इज लेस देन 10%। और लैप्रोस्कोपिक में फिर 25 to 30%, क्योंकि वो आप फील नहीं कर सकते। तो मैं आपको हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड की बात बता रही थी। उसके अंदर ये होता है कि फ्लूइड बैलेंस मैटर करता है। इनफ्लो कितना जा रहा है, आउटफ्लो कितना आ रहा है। पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में ना चला जाए, यानी इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो कम होके फ्लूइड ओवरलोड में ना चला जाए। इट कैन लीड टू वेरी बैड मॉर्बिडिटी एंड इवन मोर्टेलिटी। इसलिए अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो आप पेशेंट को हमेशा काउंसल करते हो कि 2 स्टेप प्रोसीजर में होने का काफी चांस है। यानी कि पहले 50% या 2/3 ऑफ द फाइब्रॉइड इज रिमूव्ड, 1/3 रह जाता है, जो आप 1 वीक के बाद तो नहीं, मंथ के बाद या 3 मंथ्स के बाद भी कर सकते हो, लेकिन मंथ के बाद भी कर सकते हो। और फिर उसे दोबारा बुलाते हो सेकेंड उस पे, क्योंकि आपका फ्लूइड बैलेंस की लिमिट पूरी हो चुकी होती है। और लेकिन मोस्टली आप एक ही सिटिंग में बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स रिमूव कर देते हो इफ यू आर स्किल्ड, यू गॉट गुड इक्विपमेंट, यू हैव गॉट गुड डिस्टेंशन मीडियम, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम होता है। हमारे कंट्री में फिलहाल मोनोपोलर रिसेक्टोस्कोप ही यूज हो रहा है। बाइपोलर बहुत जल्दी आने वाला है, शायद किसी किसी जगह आ गया हो लेकिन अभी तक आया नहीं। सो मोनोपोलर यूज हो रहा है, इसलिए हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम यूज करना होता है, विच इज आइदर 5% एक्सट्रोज और ग्लिसरीन। और सो इफ यू हैव ऑल द गुड थिंग्स अवेलेबल and you have got good equipment and you have got good hands and skills, आए बाएं शाएं टकरे नहीं मार रहे हो और एक ही गो में कर रहे हो, तो एक ही गो में वो पूरा का पूरा निकल आता है स्टेरोस्कोपिकली वो फाइब्रॉइड। लेकिन फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 2 सिटिंग या 2 लुक सेकेंड लुक प्रोसीजर की आप पेशेंट को बताया हो। उसकी वजह यह है कि फ्लूइड बैलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी डन ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर, और उसके अंदर आपने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना होता। उसके अंदर फ्लूइड बैलेंस की लिमिट भी है। आई थिंक जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेंशन मीडियम है जो बाइपोलर रिसेप्टोस्कोप में यूज होता है उसकी 1500 ml है, यानी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसमें 1000 ml है। यू जस्ट नीड टू चेक, ये फिगर गलत भी हो सकता है। तो एक लिमिट होती है। और फिर कई दफा आपके एनेस्थीसिया वाले भी रोक देते हैं कि पेशेंट फ्लूइड बैलेंस ओवरलोड में जा रहा है, उसके एडीमा ना डेवलप हो जाए या कुछ और ना आ जाए, चेस्ट में क्रैप्स ये वो, तो वहीं का वहीं प्रोसीजर, क्योंकि इट कैन लीड टू मोर्टेलिटी ऑल्सो। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। तो बेटर कि आप उसको 2 लुक सेकेंड लुक में कर लो, ठीक है। तो नूर ने जो बात की उसका ये मतलब है। गुड। सो हमने कर लिया। मैं नाजिश का क्वेश्चन में लेती हूँ। फाइब्रॉइड हम अगली क्लास में भी करेंगे, स्पेशली सर्जिकल स्टेप्स, डिफरेंट सिनेरियोस। फाइब्रॉइड की पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक वाले तो हमने कर लिया, बट पेशेंट कैन एचएमबी भी कर लिया। इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, सिर्फ मैस के साथ प्रेजेंट कर सकती है, यूरिनरी रिटेंशन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। फाइब्रॉइड कैन डू एनीथिंग इन द बॉडी। जी नाजिश। मैडम अगर हम इसी केस को एग्जाम में ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शंस में मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी, बस 2 ऑप्शंस हम बताएं एग्जामिनर को। यूट्राइन आर्टरी, व्हाई नॉट यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन? मैम ये पेरिफेरीज में अवेलेबल नहीं होती, मोस्टली हॉस्पिटल्स में बोलो अवेलेबल तो नहीं सही। होती। तो आपके पास क्या हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड है? You know, it's not available everywhere, but it is available in your country. Patient has complete right to know all the options that are available. You can always send the patient to the place जहाँ ये available है। At least उसे options तो दो। क्या पता, कई दफा देखने में पेशेंट लगता है फोर्डिंग भी नहीं है, लेकिन वो पीछे से इतने जिम्मेदार भी होते हैं कि वो फोर्डिंग होते हैं। At least she has all the right to know the treatment options. आप बता सकते हो कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, बट मैं नहीं करती या हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, बट इट इज अवेलेबल, इधर इधर अवेलेबल है, आई कैन सेंड यू देयर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, फ्री में भी आई एम श्योर हो रही है। सो आप ऑफर कर सकते हो। उसको राइट तो है ना पॉसिबिलिटीज पता करने की। एंडोमेट्रियल एब्लेशन इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। आप उसे ऑप्शन तो बताओ। जी जी नाजिश एंड निरम। मैडम यूट्राइन मैम आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है वो तो सिंगल फाइब्रॉइड के लिए करते हैं ना, ये तो डबल फाइब्रॉइड्स पे। मल्टीपल के लिए भी करते हैं, अब मल्टीपल के लिए भी हो रही है। एंड आर्टरी तक वो लेके जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि अगर मल्टीपल है तो आप उसे बता दो कि रिकरेंस का चांस ज्यादा है। दूसरा ये कि उसके अंदर आपको हाईली स्किल्ड इवन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का सक्सेस भी कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने एंड आर्टरी तक पहुंचना है इंडिविजुअल फाइब्रॉइड्स के।
बट अब क्लेम कर रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाले कि वो करते हैं एंड आर्टरीज तक ले जाके, बट अगेन उसमें सक्सेस कम हो जाता है, मैम महंगा ये भी जो ज्यादा। हम ओपन करेंगे, ओपन भी अगर मायोमेक्टमी में हमने की तो उसमें भी तो ये कैविटी के मतलब कैविटी खुलेगी इसमें। कैविटी खोलेगी क्योंकि इंडेंटिंग द कैविटी है ना। जी जी, इरम का क्वेश्चन खत्म हो गया। लाइक जी खिजरा। मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये क्वेरी है कि जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को हम ऑप्शन में रखेंगे तो हम तो इस बात को भी फिर देखेंगे कि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन सब सेरोजल फाइब्राइड एंड सब म्यूकोजल फाइब्राइड, तो उसको भी हम डेफिनेटली। एक्सक्लूड करेंगे। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम कहते हैं कि लेस देन 3 सेंटीमीटर फाइब्राइड है जिसके लिए हमने एंडोमेट्रियल एब्लेशन करनी है, तो मैम ये तो सब म्यूकोजल के लिए होगा ना, क्योंकि वो विद इन द एंडोमेट्रियल कैविटी होता है। वैसे जो विद इन मायोमीट्रियम होता है उसमें एंडोमेट्रियल एब्लेशन के लिए लिखा होता है कि अगर 5 mm से बेसल लेयर से डेप्थ ज्यादा हो तो फिर उसके लिए नहीं करते। एंडोमेट्रियल एब्लेशन फॉर फाइब्रॉइड, अगर वो सब म्यूकोजल है तो उसके अंदर तो हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड इज द ऑप्शन, नॉट द एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन यस मैम, वो तो HMB थ्री बिकॉज ऑफ द सेंटीमीटर एंडोमेट्रियल कॉज है। तो मैम एंडोमेट्रियल ऑरिजिन्स में कौन से फिर जो ये फ्लो चार्ट में लिखा होता है कि लेस देन 3 सेंटीमीटर फाइब्राइड के लिए हम बट इट्स नॉट अ, सब म्यूकोजल ना। लेस देन 3 सेंटीमीटर ऊपर कहीं है तो जाहिर है फिर तो ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल कॉज की वजह से आ रही है, इसलिए जी एब्लेशन मैम। पॉसिबल है। ठीक है ना। तो मैम एंडोमेट्रियल एब्लेशन में तो ये भी लिखा होता है ना कि अगर व्हेन इट इज ग्रेटर देन 5 mm ऑफ द बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, तो उसके लिए फिर हम नहीं कर सकते अगर ठीक है डेप्थ। बिल्कुल, क्योंकि तो उसमें मैम हमने फिर ये डेप्थ तक किस जाना है फाइब ना। जी मैम, तो फिर ये किस फाइब्राइड के लिए होगा, क्योंकि सब म्यूकोजल के नहीं, लिए तो सब म्यूकोजल के लिए तो आपने स्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ जी जी फाइब्रोइड मैम। किया। वो तो कोई आपको मैम ये कंफ्यूजन हुई है। वो असल में एंडोमेट्रियल एब्लेशन जो है वो एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए होती है, जिसमें आपने पर्टिकुलर थिकनेस तक अंदर जाना होता है, फिर वो एब्लेशन जेन्युइन होती है। उसके लिए जी स्पेशल मैम। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपिकली वो होती है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स और होते हैं। बट वो ये है कि इफ देयर इज अ फाइब्रोइड इन द सबम्यूकोजा तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना। मैम ये बुक्स में जो लिखा होता है फ्लो चार्ट्स में कि लेस इसको देन थ्री देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो शायद आपको सही उस रेफरेंस में आप शेयर कर देना, मैं देख लूंगी, हो सकता है मैं बता सकूं कि वो किस सही है रेफरेंस में मैम। लिखा हुआ है। ठीक है सही है जी। मैम। हमारा नूर और तस्मिया जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो, फिर हम अगली मैडम क्लास भी फाइब्रॉइड की कंटिन्यूएशन होएगी, क्योंकि इसके काफी सारे सिनेरियोज बनते हैं जी। मैडम मेरे मैं दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि जब हम स्टेरोस्कोपी सब म्यूकोजल रिसेक्शन करते हैं तो उसमें साइज की कोई लिमिट है? और कोई लिमिट नहीं है, सच्ची बात बताओ, आपके हम्म, स्किल्स की बस लिमिट है, आपकी स्किल्स कहाँ तक है। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली सब में कोजल एक लिमिट तक ही साइज होता है ना, वो हम्म। वरना मैडम 5 वजाइना में होते हैं ना प्रोट्रूड उसमें। करना शुरू कर देता है। तो 3 या 4 या मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा हो सकता मैडम है। 3 से लेकिन 5 अगर होता है। 5 भी है एंड इट इज फिलिंग अप द कैविटी, यू कैन डू इट विद द रिसेक्टोस्कोप और मैडम विद द अगर पेशेंट कंसेंट ऑफ हमारे ट्रू पास सिटिंग प्रोसीजर जी। जी मैडम, अगर पेशेंट हमारे पास नियर टू मीनोपॉज एचएमबी के साथ ड्यू टू फाइब्राइड आ रही है तो फिर हम उसको सर्जिकल ऑप्शन देंगे या उसका सर्जरी को बोलेंगे कि आप नियर टू मीनोपॉज है कुछ 2-3 साल असल में? में मसला क्या है, पेशेंट अगर 49 ईयर्स ऑफ एज है और वो आ रही है मेनोपॉज के पास, मतलब ऑब्वियसली 49 ईयर्स ऑफ एज है और फाइब्रॉइड है, तो क्या अगर उसका मेनोपॉज 51 तक नहीं आता तो क्या 2 साल वो सफर करती रहेगी HMB में? हमें क्या पता उसका मेनोपॉज कब आना है। बात तो है ना सोचने वाली। वो कोई वजह है जो आपके पास आई है, वरना वो खुद ही घर में रुक जाती। और ब्लीडिंग ड्यू टू फाइब्रॉइड विच इज इंडेंटिंग द कैविटी इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड बिकॉज ऑफ विद द मेडिसिन। ठीक है ना, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो एट टाइम्स हम कह देते हैं, पेशेंट बेचारियां गुजारा भी कर लेती हैं, 2 साल गुजार लेती हैं, लेकिन 2 साल HMB के साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, बहुत बुरी बात है। तो ठीक फिर है, मतलब मैडम उनमें भी हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उनको वही आप ट्रीटमेंट जो मतलब मैं दे बता देंगे? रही हूँ जी। जी ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। जी, वेलकम जी। तस्मिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी। Madam, young patient if no fertility desire and multiple fibroids, what will be the बड़ा अच्छा सवाल है, justification of hysterectomy? बड़ा अच्छा सवाल है।
यंग पेशेंट में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, फॉर एग्जांपल पेशेंट आ जाती है, मैं सबसे मुश्किल बात करने लगी हूँ 26 ईयर्स की, और फॉर एग्जांपल शी इज अनमैरिड या इवन शी इज मैरिड, और वो कहती है मैं आई ही नहीं आपके पास बेबी के लिए, मेरे तो ब्लीडिंग है, दीज आर द फाइब्रॉइड्स एंड ऑल दैट। यू कैन ऑफर नंबर 1 पे मायोमेक्टमी, नंबर 2 पे यू कैन ऑफर हिस्टेरेक्टमी, क्योंकि यू हैव टू टेल हर के रिकरेंस इज देयर, यू आर ओनली 26, अभी तो 20 साल पड़े हैं आगे, यू नो 20 पढ़े हैं, 20 से भी ज्यादा पढ़े हैं मेनोपॉज में। तो द रिकरेंस कैन हैपन, एंड इफ रिकरेंस हैपेंस देन एक मायोमेक्टमी के बाद ऑब्वियसली ज्यादा मैसिव सर्जरी होगी। तो आप, लेकिन बात याद रखना कि पेशेंट्स डू रिग्रेट, आप बहुत ज्यादा एम्फोसाइज ना ही करो हिस्टेरेक्टमी पे यंग एज में। मैंने तो 30s में भी पेशेंट की नो डिजायर ऑफ फर्टिलिटी में उसने हिस्टेरेक्टमी करा के डिप्रेशन में जाते देखा है, बिकॉज लेटर ऑन दे कैन डिसाइड फॉर अ बेबी। तो आप सिर्फ पेशेंट, लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है जो पेशेंट इरिटेट हो जाती है कि जब मुझे रिकरेंस नहीं चाहिए, मुझे हिस्टेरेक्टमी चाहिए, एंड व्हाई यू सेइंग दैट आई शुड कंजर्व माय यूट्रस, तो फिर तो ऑब्वियसली, but yes, it's justifiable to prevent her from recurrence. She is firm that she doesn't want any babies, or तो बस फिर ठीक है, और मैम इसको अगर justifiable है। फर्टिलिटी चाहिए तो इसी केस को तो फिर तो हम पूरी इसकी तो वो होगी ना प्लान। सॉरी, एक मिनट, जस्ट मैं आ रही, एक मिनट बाद से। ठीक हो गया, चलो गुड। और तो हमने वो तो सर्जरी सारी जो यंग एज में भी, फर्टिलिटी वाले में भी, नॉन फर्टिलिटी वाले में भी, उसकी तो भी सर्जरी पे पूरी एक क्लास होगी। सना प्रिपेयर करके आएगी सर्जरी भी, हम फिर उस पे करेंगे, और लुबना अगर आ जाए तो वो भी। मैम ये फर्टिलिटी वाली पूछ रही थी मैं इसका ही ना, ठीक है, वो इसको हम कर क्या ऑप्शन लेंगे। देंगे? ठीक है, अमारा ने क्या सवाल करना है? मैडम मैंने भी प्रेजेंट करना है क्लास में। अगली क्लास में आप भी करना, ये फाइब्रॉइड के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस करेंगे, तो वो मैनेजमेंट ही बोलेंगे, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड क्या आप लोग इतने वीक हो मैनेजमेंट में कि परेशान ही हो जाए इंसान। मैडम मैनेजमेंट जी, करवा जी देती, मैडम। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज की ना हिस्ट्री तो सबकी सेम ठीक होती है, है मैडम, मैनेजमेंट में हम फंस जाते हैं। ठीक है। मैडम अगर आती है 8 HP के साथ, और लेकिन उसको कंटिन्यूअस हैवी ब्लीडिंग है, मतलब आई भी है हम्म, ब्लीडिंग के साथ है, और वो स्टॉप नहीं होती उसकी ब्लीडिंग, तो मैडम उसको हम एडमिट करेंगे, ब्लड यस, ट्रांसफ्यूजन करेंगे, डेफिनेटली। उसके साथ उसको तो बेचारी ट्रांजेक्शन। को आप एडमिट करो। अच्छा, ये भी हमने वैसे मैनेजमेंट में, मुझे याद कराना, ये बड़ा अच्छी उसने सिनेरियो बोला है, ये हम बिल्कुल करेंगे। मैं अभी खजरा वाला पेपर मैंने खोला हुआ है, इसका जवाब दे के मैं जाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर जिसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, डेफिनेटली यू हैव टू एडमिट हर, यू हैव टू बेटर टू स्टॉप हर ब्लीडिंग, ट्रांजमीन दो, एटलीस्ट स्पॉटिंग ही हो जाए, ब्लीडिंग से रुक जाए। उसको थोड़ा बहुत प्राइमेलेट भी दे सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोल करके, देन यू कैन प्रोसीड, ठीक है। अच्छा, खिजरा ने जो पेपर भेजा ना, जिसमें वो क्वेश्चन कर रही है कि फाइब्रॉइड, बेटा वो इट्स नॉट सबम्यूकोजल, इट्स नॉट 3 सेंटीमीटर, इट्स नॉट इनसाइड, उसमें लिखा है नो एबनॉर्मेलिटी, फाइब्रॉइड लेस देन 3 सेंटीमीटर, दिस फाइब्रॉइड कैन बी फीगो 4, फीगो 5, फीगो 3, फीगो, मतलब इट्स नॉट 2 और 1 और 0, ठीक है। तो जो फाइब्रॉइड ऊपर कोई 3 सेंटीमीटर से कम है और उसमें ब्लीडिंग का मसला है, तो वो डेफिनेटली एंडोमेट्रियल रीजन की ब्लीडिंग है ना, तो उसके अंदर एंडोमेट्रियल एब्लेशन काम कर जाएगी, ठीक है। और मैम इस वाली पेशेंट जो मैंने अभी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की बताई है, हम्म, मैम इसमें हम लोग स्क्रीन पे ड्यूरिंग मिशन इसको डालेंगे, मैम इसको हम हार्मोन्स पे तो नहीं डाल सकते ना? नहीं, जिसमें, हाँ, इसको नहीं, हार्मोन इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हर, ये तो हम सिर्फ उसकी किसी यस। तरह ब्लीडिंग को स्पॉटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे ठीक हम है मैडम, डिटेल में अगली थैंक क्लास में मैं बताऊंगी भी, ठीक है। यस मैडम, थैंक यू मैडम। चलो, ओके, वेलकम।
Yeah, baby, you should go.